Good morning, students. How are you? Today we will discuss the next video of reflection of light through prism. Today we are discussing, but again we will repeat. I am repeating for a while of 1 minute. See children, yesterday we were discussing the important angle A of the prism play important role in the whole games of the you can say reflection of light through prism. Yesterday we have discussed a result, and that was what today again we will discuss about, because we have do a minor mistake in that article. She what it is. This is angle of incident. Again repeating, angle of incident, angle of emergent. R1, R2 are what? Refractions. And delta, the main role of delta, that is A and delta. A plus delta is equal to what? Angle of incident plus angle of emergent. But what happens, because by the result, we have seen that I is equals to E. I is equals to E. For what? Remember it. For minimum deviation. Minimum deviation. Minimum deviation. In this situation, this formula will be I plus In A plus delta. 2I is equal to A plus delta. So I is equal to A plus delta divided by 2. This is most important rule. Divided by 2. And similarly, we know that now formula, and that is A is equals to what? R1 plus R2. So R1 and R2 are equal, so 2R. R1 is equal to R2, we'll say R. So 2R is equal to A. When R1 and R2 are equal, supposed to be a simple reflection R. So R is can be written as A by 2. Find the reflection by using the Snell's rule, and that is what? Mu is equal to angle of mu is equal to, we will write sin I upon sin R. At the place of I, we will write here A plus delta divided by 2, taking sin mu is equal to, and that is the sin R can be written as A by 2. Yesterday I was mistake that A plus lambda divided by 2. आप वहां लिख दिला दीजिएगा, यहाँ पे बस यही हमने लिखा था, आप बस कुछ करना नहीं है. You have to write here by 2. So remember and improve it, सुधार लीजिए उसको. I think mu is equal to sin A plus delta divided by 2 and sin A by 2. एक चीज इसमें याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हमेशा इन दोनों के एंगल का आधा लेते हैं. कभी कभी अक्सर बच्चे, जैसे हमने मिस्टेक कर दिया था, हमेशा बच्चे क्या करते हैं, जब भी कभी प्रैक्टिकल फाइंड आउट करते हैं म्यू को पाने के लिए, तो वो डायरेक्ट यहीं जोड़ के और फिर उसकी साइन टेबल लेकर के बोर्ड में लिख देते हैं, या साइन टेबल दी रहती है इन दोनों के जोड़ का. तो याद रखिए इन दोनों की वैल्यू जो ना, अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हो तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा. अगर प्रैक्टिकल पर्पस से लेते हो तो A प्लस लेमडा, A प्लस प्रैक्टिकल पर्पस लेते हो और ये दोनों बहुत स्मॉल हैं, तो साइन और साइन दोनों तरफ से हट जाएगा. A प्लस लेमडा बाई 2 और A बाई 2 कट जाता है. 1 प्लस लेमडा बाई A बच जाता है. आई थिंक आप समझ रहे हैं. कभी कभी बड़े एग्जाम से पूछ दिया जाता है, इन दोनों को हटा करके बेटा A प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई A कर देता है, और A कर देता है कि इसका मान पूछता है कि क्या 1 से ज्यादा होता है क्या. मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं. 1 से ज्यादा होता है तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे आ जाता है, एक नंबर में प्रश्न आ जाता है कि क्या इसकी वैल्यू जो म्यू की है वो 1 से ज्यादा आती है. बिल्कुल आती है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल होने के कारण एक कैंसिल हो जाता है, 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, और लैम्ब्डा बाई ए. तो इस चीज को दिमाग में रहे, कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में. तो आई थिंक यू विल इंप्रूव, यू विल राइट देयर इन योर कॉपी a plus lambda by 2. Study it was not mentioned by 2, so I think you will write it.
Children, we see the next article and what is the, अभी ये इससे पीछा छूटने वाला नहीं है, अभी ये लंबा जाएगा। See, अब देखिए आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। कहना क्या चाह रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ ए प्रिज्म। देखिए कहानी बदले, द स्टोरी इज गोइंग टू बी चेंज। अभी तक हम लोगों ने लार्ज एंगल पढ़ा, and now we will study what happens children when this angle will be decreasing. जरा सोचिए, just think children कि this is a prism, this is a prism, this is prism, see this is prism, this is prism and this is angle which I am removing and connecting, ये angle। if अगर ये जरा देखिए इफ वी इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, इफ एंगल इज इंक्रीजिंग, ये एंगल बेटा दिस एंगल, ये जो मैं पकड़ा हूं जहां पे ये एंगल है इतना है, ये एंगल अगर हमने बढ़ाने लगे तो रिफ्रैक्शन की क्राइटेरिया भी क्या होगा, बढ़ने लगेगी, डिस्पर्सन पावर बढ़ने लगेगा, डेविएशन भी बढ़ेगा। अब आगे इसी का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे क्या होगा इफ, अब ये तो बढ़ाने की बात आई, तो बढ़ाना तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा संभव नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लैट करेंगे बढ़ाएंगे तो 180 पहुंच जाएगा और 180 में तो फिर कहानी वही सी हो जाएगी। तो फिर अब देखिएगा कि व्हेन वी विल डिक्रीज बेटा, जब हम इसको घटाने लगते, ये जो एंगल है या प्रिज्म इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, हमारे फिंगर को देखेंगे तो ये जो है ये कम होने लगा, एंगल कम होने लगा। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा जब एंगल बहुत कम हो जाए तो क्या होगा, याद रखें व्हेन एंगल बिकम्स सो स्मॉल, तो उसी चीज का हम स्टडी करेंगे कि क्या ऐसा होगा क्या कि जब ये पतला होता जाएगा, जब ये, अब देखो होगा क्या, इंसिडेंट रे वही हम रोकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बेटा पतला होना चाहिए तो जब सोचिए कि यहाँ जो नॉर्मल है ये पतला होने लगेगा तो नॉर्मल खिसकने लगेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, जस्ट सी कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, सपोज माय पेन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड मार्कर इज नॉर्मल, तो जब ये प्लेट ही पूरी ऐसे हो रही है, समझिए ऐसे बेंड दब रही है, तो ये जो नॉर्मल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये तुरंत ये कम होगा, इसे समझ ये कम होगा तो ये सिकुड़ेंगे, ये जो बी और सी है बेटा ये सिकुड़ेंगे। तो जब बी और सी सिकुड़ेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलरेडी डिक्रीज हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ही डिक्रीज होने लगेगा तो आप जानते हैं कि एंगल ऑफ जो इमर्जेंट है या डेविएशन है उसके ऊपर क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा। देखो भैया आपको पहले ही बता चुके हैं, आई टॉट यू इन ए फार्मूला, क्या व्हाट वाज दैट फार्मूला कि म्यू इज इक्वल टू, या ये बता चुके हैं आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस, यहां से भी समझ लीजिए, यहां से भी आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझेंगे क्या है ये कि जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट घटता है, एंगल ऑफ ए भी घटा है, हम इसको भी घटा रहे हैं, इसको भी घटा रहे हैं, तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं, ये भी घटेगा और दूसरी भी आल्सो डिक्रीजेज। क्यों, क्योंकि ए भी घट रहा है, जब ए घटेगा, याद रखिएगा ए घटेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी घटेगा, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट भी घटेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जितना कम जाएगा लाइट तो कम इमर्जेंट होगा, ज्यादा जाएगा तो ज्यादा इमर्जेंट होगा, ज्यादा एंगल पे जाएगा तो ज्यादा इमर्जेंट होगा, कम एंगल पे जाएगा तो कम। तो याद रखिएगा कि मतलब अगर इफ दिस इज इंसिडेंट इज डिक्रीजिंग, इंसिडेंट रे डिक्रीजिंग, एंगल ए इज डिक्रीजिंग, सो एंगल ए घटेगा तो इंसिडेंट रे घटेगा, एंगल ए घटेगा तो इंसिडेंट रे घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि पूरी स्टोरी और होल स्टोरी मूव्स अराउंड इंसिडेंट एंड एंगल, इमर्जेंट और डेविएशन तो
रिजल्ट्स है, इमर्जेंट एंड डेविएशंस आर द रिजल्ट ऑफ दिस एंगुलर डिस्क रिफ्लेक्शन इन लाइट थ्रू प्रिज्म। तो ई याद रखेंगे, कीप इन माइंड दैट एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज द रिजल्ट। पहले तो एंगल इसकी कहानी जब चालू होगी स्टोरी, देन इट विल बी द आउटकम, और ये टोटल आउटकम जितना आउटकम हमें मिला ओरिजिनल से कितना आउटकम मिला, तो ये हमारा अंतिम परिणाम है। समझ लो कि ये रिजल्ट है, ये इसमें आप परीक्षा दिया, ये बोलो ऐसे समझ लीजिए आप। तो एज वी डिक्रीज द एंगल ए, तो ए विल बी आल्सो डिक्रीज, तो पूरी कहानी डिक्रीज होने लगेगी। जब इंसिडेंट रे डिक्रीज होगा तो इंसिडेंट से सीधा संबंध किसका है, R1 का है, और इमर्जेंट भी डिक्रीज, इंसिडेंट डिक्रीज होगा तो R1 और इमर्जेंट का संबंध R2 से। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट कॉन्सेप्ट? इफ एंगल, if incident angle of prism is decreasing, incident angle decreasing, value of E emergent is decreasing, so if I and E are decreasing, simply by this way, due to because of it R1 and R2 will be decreasing। अब ये डिक्रीज होने लगेंगे बेटा, तो कितना डिक्रीज होंगे भाई, हाउ मच दे विल डिक्रीज, यू विल थिंक ये ऐसा होने लगेगा एक ये जो है डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होते 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 20 एंगल विल बी डिक्रीज इतना कम हो जाएगा कि कुछ ये मत, इतना कम। अब ये नहीं कि इससे समय तो जीरो, मतलब इतना कम कि अब समझ लीजिए कि 2 इक्वल टू लगभग ये नॉर्मल और ये लगभग सटे ना हो, एकदम थोड़ा दूर बनाए रखे हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखे हो। सो इतना भी दूरी की मतलब उस परिस्थिति में इन दिस सिचुएशन होगा क्या, आइए उस चीज को डिस्कस करेंगे। जब आई बहुत कम, व्हेन आई फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हेन आई इज टू स्मॉल, टी डबल ओ टू स्मॉल, बहुत कम हो आई, तो R1 R2 और भी also will be very small। अब आपको समझा चुके हैं कैसे स्मॉल होंगे। पहले तो ए ही स्मॉल होगा तो इमरजेंट इस्तेमाल हो जाएगा, जब ये भी बेचारा कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये और ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम। सो ईच जस्ट बिकॉज ऑफ ए ऑल दीज 4 क्वांटिटी मे बी डिक्रीज। तो एंगल ए को ही डिसाइड करता है कि क्या होगा, angle that decides what will happen। So remember and you will never forget this result। See children, हम कब बताना चाह रहे हैं कि when R is too small, R1 will be so small, R2 will be so small and emergent। अब हमारे साथ फार्मूला के साथ क्या होगा, what will happen, what will happen with formula in this case। हम जानते हैं, we know that शुरुआती स्टेज में म्यू इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। साइन ऑफ आई इक्वल टू साइन ऑफ R1। क्यों? इंसिडेंट तो रिफ्रैक्शन और स्नेल्स का रूल है। अब चूंकि ये बहुत स्मॉल है, टू वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल, और जब साइन थीटा बहुत ही स्मॉल हो, इट इज इक्विवेलेंट टू बेटा, इट इज इक्विवेलेंट टू थीटा। ऐसा होता है क्योंकि बहुत कम के लिए नहीं वैल्यू है, बहुत कम अगर थीटा की वैल्यू हो तो थीटा के मान के बराबर है, बहुत कम। अब सिमिलरली यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, ये रिजल्ट है बेटा। सिमिलरली साइन आई की जगह हम लिख देंगे या रखेंगे आई, और साइन R1 की जगह विल राइट हियर बेटा। क्यों? इस थीटा इज वेरी स्मॉल। जब बहुत स्मॉल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में बी रिमूव्ड, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हट जाते हैं, या
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जगह साइन आई की जगह एट द प्लेस ऑफ साइन आई वी विल पुट आई, एट द प्लेस ऑफ साइन r1 we will put r. I think you have understood it. So what will happen here? Here we will write I upon r1. यहाँ म्यू इसको इधर कर दीजिए. So म्यू into r1 is equal to I. Similarly केस 2 ले लेते हैं. Similarly क्या होगा, चलिए यही बता देते हैं. आप इक्वेशन 1 मान लीजिए. म्यू इज इक्वल्स टू साइन, पहुंच जाते हैं यहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंट अपॉन आर. सो साइन r2, सेम केस इज हैपनिंग लाइक दिस. सो आप समझ गए होंगे. We will write here E by R. Mu can be written as E by R2. So multiply here mu and we will get E is equals to beta mu R2. We'll get results. Second result. स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका. अब जरा देखें. We have formula I is equals to हमें एक रिजल्ट था. I is equal to mu r, E is equal to mu r. To put this result in this. अब ये दोनों रिजल्ट जब हम रखेंगे बेटा तो what will happen? यहां थोड़ा सोचने वाली बात है. What will happen? We will write at the place of I, ये at the place of E. आप समझ लीजिए लेके गया तो I के जगह पे हम म्यू r1 लिखेंगे और E के जगह पे बेटा राइट म्यू r2 लिखेंगे. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. एट द प्लेस ऑफ I यहां लिख देंगे हम म्यू r, यहां लिख देंगे हम क्या बेटा म्यू r2. रिजल्ट क्या हुआ देख लेते हैं. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख see the result. At the place of हमने बताया here we will write mu r1, E की जगह पे लिख देंगे आप mu r2. This is the special case. ये एक स्पेशल केस है. This is the you can think that this is the special case कि हम बढ़ाते हैं एंगल को घटाते हैं. प्रीवियस केस में डेविएशन में हमने क्या बढ़ाया था? इंसिडेंट बढ़ाया घटाया था. याद रखिएगा दो ही चीज बढ़ाएंगे घटाएंगे. या तो एंगल आई बढ़ाएंगे या तो एंगल ए बढ़ाएंगे, क्योंकि बोथ डिपेंड ऑन दिस प्रिज्म की मेन जड़ यही दोनों है. इसीलिए इनको हम कम ज्यादा करके लिख रहे हैं. सो रिमेंबर इट. ए प्लस डेल्टा विल राइट हियर. व्हाट विल हैपन? सी हियर म्यू नॉट म्यू1, म्यू. Take mu common, r1 plus r2 is equal to a plus delta. At the place of कल बताया था मैं आपको ये फार्मूला. What a is equal to r1 plus r2 will write here mu into a बराबर a plus lambda. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको. हमने कुछ नहीं किया भाई. After nothing बस we have proved a r1 at the place of r1 r2 we have right angle a होता है. ठीक है ना. हमने बताया था. ये आपको फिर से अगर आप भूल गए हो तो रिमाइंड. ये एंगल o होता है. इन दोनों को जोड़ने पे 90 होता है. इनको जोड़ने पे और रिजल्ट ये होता है. याद रखिएगा. r1 r2 पहले कैसे फिर से बता रहा हूं. ये आपको ये r1 ये एंगल o r1 r2 180. ये एंगल ये तीनों 160 रख देंगे उसमें तो r के बराबर r1 r2 मिल जाएगा. यहां लिख देंगे. हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा. तो डेल्टा ही मेन डेविएशन ही पूरी कहानी डेविएशन के लिए a को उधर ट्रांसफर कर दी. म्यू माइनस प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा बेटा. ये a टेक कॉमन यहां मिलेगा म्यू माइनस 1 डेल्टा. फॉर गेटिंग दिस रिजल्ट we have done all these things. हमने
ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हमने इसी रिजल्ट के लिए किया है, हमने आपको बताया है, आपको ये तो मैं समझाया हूं, अब आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। प्रीवियस रिजल्ट में जब हम डेविएशन निकाल रहे थे, जब हम आई को बढ़ा घटा रहे थे, व्हेन वी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई, तो वी गॉट द डेविएशन, और वो मिनिमम डेविएशन था, एंड दैट वाज द रिजल्ट, दैट रिजल्ट वाज द म्यू इज इक्वल्स टू, हमारे साथ बोलिए, म्यू इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 व्हिच वाज रिमाइंडेड, and divided by sin a by 2, so result was, it was the mu. अब for if you are changing angle, अब एंगल ये बदलते हैं, तो जो एंगल ये बदल, if you are changing decreasing angle है, decreasing angle है, in that I was increasing, here a is decreasing, so second case is a is decreasing, जब a is decreasing तो I will decrease, तो R1 R2 E1 everything will decrease. अब ये इतना डिक्रीज हो जाता है कि एट द प्लेस ऑफ sin थीटा we will put sin, at the place of sin theta we will put theta, if theta is too small, very small, अब I की जगह हो जाएगा, R1 की जगह हो sin R1 की जगह हो sin I की जगह हो जाएगा sin R2, यहाँ लिख लीजिए, दिक्कत हो सकता है आपको, मिल रहा है sin R2 की जगह, और यहाँ sin E, काफी दिक्कत आपको ना, ठीक है। सो राइट हियर, अब क्या होगा, अब हम ये चीजें पुट कर देंगे किसमें, ओरिजिनल फॉर्मूले में, आई ए प्लस लैम्बडा, जैसे ही अब ये इतने छोटे हो गए कि ये आई, अब हम यहां से निकालिए म्यू R1 इक्वल टू आई, और ई बराबर म्यू R2 आई, यहां रख दिए म्यू R1 म्यू R2, म्यू कॉमन ले लें, बिकॉज अब म्यू इज कॉमन इन ईच, a प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a, सो a प्लस लैम्बडा, यहाँ R1 और प्लस R2 की जगह पे a रख दिए, यहाँ म्यू a प्लस a और प्लस लैम्बडा, वी विल राइट हियर व्हाट, a को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये माइनस हो जाता है बेटा यहाँ, और a कॉमन ले लेते हैं, हमें डेविएशन का रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट व्हिच कम्स इन योर एग्जाम। सो कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि ऐसा क्या होता है, व्हाट हैपेंस, यहां से रिजल्ट स्टेट एंड प्रूव द फाइंड द एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंड, यहां से कई बार प्रश्न पूछा है सीबीएसई में कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, म्यू तो कांस्टेंट रहता है, ए भी कांस्टेंट रहता है, तो याद रखिएगा कि म्यू की वैल्यू ये दोनों पे डिपेंड करता है, तो याद रखिए डेविएशन इज, आप कह सकते हो कि ये बहुत स्मॉल है तो एक मान जाएगा, तो डेविएशन जो है वो एंगल ए और इंडेक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो इस चीज को भी याद रखना, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन डेविएशन in the refractive index and an angle of the prism, तो this result is very important, sometimes कुछ के घुमा के पूछ देता है, तो इस रिजल्ट को बहुत इजी है, करना क्या है इस रिजल्ट को पाने के लिए, बहुत आसान है, सीधे हेडिंग डालेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, जस्ट सी, बिकॉज़ लिखना इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्मॉल प्रिज्म का, स्मॉल एंगल प्रिज्म का, स्मॉल एंगल प्रिज्म लिख लीजिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म विद स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब एंगल स्मॉल हो तब कहानी क्या होगी, म्यू इक्वल टू साइन आई, मैं बता दिया हूं, साइन आई अपॉन साइन R1, एंड म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन R2, क्यों, बिकॉज आई एंड E and R1 R2 are too small and they are supposed to be sin theta is equal to theta, when theta remains small it is mentioned in trigonometry. So by the help of trigonometry, I is assumed to be small and R2 to small, you have to write, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, जब हम लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये तो लिखा नहीं है, तो जस्ट बिकॉज कई बच्चों के मार्क्स तो इसी में एक नंबर के लिए कट जाते हैं कि आपने शो नहीं किया, बिकॉज आप जल्दी में रहते हैं, तो डोंट डू फास्ट,
if you want to, if you will write everything definitely you will got mark, each mark, even 1 mark, half mark. So I have seen many students get less marks just because of doing a silly mistake. So don't do a silly mistake. Mu is equal to sin I upon r1. After this write in your copy inside, पीछे लिख लीजिए, बाजू में लिख के उन्हें जरूर दिखा देंगे. Mu is equal to sin I upon r1, mu is equal to sin E upon r2. We write I is equal to mu r1, E is equal to mu r2. I plus E, our original formula I plus E is equal to A plus delta. Put here mu r1, mu r2, A plus delta, mu r1 plus r2 is equal to A plus delta. You put here A plus delta is equal to V. Transfer A, you will get lambda is equal to this one result. So I think you have understood this result. क्या है इसमें आप कहेंगे सर इसका कंक्लूजन क्या है, कि क्या कहना क्या चाह रहा है बेटा? इट्स स्टेटमेंट स्टेट दैट, कहना ये चाह रहा है कि as we decrease the angle everything will be decreases and whole result का पूरी कहानी डेविएशन डिपेंड ऑन ओनली 2 फैक्टर एंड दैट इज द एंगल. अब डेविएशन, इस फार्मूला में डेविएशन जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई रिलेशन ही नहीं है. सीधे बोल रहा है कि डेविएशन इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इंडेक्स. मतलब अगर एंगल ऑफ प्रिज्म डिसाइड करता है कि कितना डेविएशन होगा और स्कैटरिंग कितना होगा, डिस्पर्सन कितना होगा, ये इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल होता है. तो मतलब ये है डेविएशन डिपेंड ऑन द प्रिज्म एंड एंगल. इफ प्रिज्म इज a higher tensor, dispersion will be dependent on this. If mu is less, dispersion will be dependent on it. So remember it's often that deviation at last, deviation at which points depend. So remember deviation depend on the angle of prism and refractive index. कभी कभी आप कहेंगे कि सर डेविएशन की यूनिट पूछी जा सकती है, तो यहाँ से आप यूनिट वगैरह की टेंशन लेना पड़े. ये एंगल है, रेडियन है, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. तो अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी कि द व्हाट विल बी द एंगल, यूनिट ऑफ द एंगल, कभी कभी पूछ दिया है किसी एग्जाम में, कभी पेपर पर लगेगा. सो यू विल सी दैट कि द एंगल ऑफ डेविएशन मींस रेडियन, यू विल राइट रेडियन और डिग्री. सो एंगल, द यूनिट ऑफ एंगल ए is the unit of deviation. Sometimes it has been often, कभी कभी कह दिया जाता है. तो अगर यूनिट पूछी जाए तो याद रखिएगा हमेशा एंगल की जो यूनिट होती है बेटा, ये एंगल की जो यूनिट होती है वही डेविएशन की भी यूनिट होती है, क्योंकि ये जो मुड़ेगा, ये टर्न होगा, कोई ना कोई ये एंगल फ्रेम करेगा इस पॉइंट पर. सो रिमेंबर, ठीक है. आगे हमारे पास देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स इन इट, हम डिस्कस करेंगे. The dispersive power of prism, all these things we will discuss. So thank you children, bye bye, see you in the next video.